Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator. Today, the topic that we are going to discuss is the Jallianwala Bagh massacre, which is, you can say, a very dreadful day in the history of India, in the modern Indian history of India. So, we are going to discuss what was this massacre, what impact did it have, why this day was witnessed by so many Indians, and what are the important acts also and the provisions also which were taken by the British government in India at that time. Okay, what was the result of this massacre? All these pointers we are going to discuss today. Make sure that you subscribe to this channel in order to never miss an update in the future, and also the class PDF will be uploaded on our Telegram channel. You can download it straight away from there. Okay, so this is lesson number 10 in the Acts for UPSC History/Freedom Struggle series that we have started. So far we have completed 9 lessons. This is the lesson number 10, and these lessons are going to help you in your prelims, right, examination, UPSC CSE prelims. तो ये जो लेसन हैं ये आपको प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प करेंगे, आपके लिए ये नोट्स हैंडी रहेंगे, तो इसीलिए बहुत ध्यान से लेसन को सुनिएगा, और आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं. यू कैन ऑल्सो मेक साइमल्टेनियस नोट्स इन द क्लास itself. Okay, let's start with the Jallianwala Bagh massacre. Now, when we talk about the Jallianwala Bagh massacre, this massacre is also known as the Amritsar massacre, and this massacre took place on 13th of April 1919, when the acting brigadier general Reginald Dyer, he ordered his troops of the British Indian Army to fire their rifles into a crowd of unarmed Indian civilians in the Jallianwala Bagh, which is in Amritsar in Punjab. And because of this, 379 people, at least 379 people were killed, more than 1200 people were injured. And if you have ever visited the Jallianwala Bagh, you can still see the gunshots on the walls. Now, it was Sunday on 13th April 1919 when General Dyer, convinced a major insurrection could take place, banned all the meetings, and this notice was not widely disseminated. So many villagers they gathered in the Bagh to celebrate the important Hindu and Sikh festival of Baisakhi. Peacefully, they were protesting the arrest and deportation of two of the national leaders. One was Satyapal and second was Saifuddin Kichlu. And General Dyer and his troops entered the garden, blocked the main entrance behind them, took up position on a raised bank, and with no warning opened fire on the crowd for about 10 continuous minutes, directing their bullets largely towards the few open gates through which people were trying to flee. Until the ammunition supply was almost exhausted, they were continuing their shooting. The following day, Dyer stated in a report that I have heard that between 200 and 300 of the crowd were killed. My party fired 1650 rounds. The Hunter Commission report published the following year by the Government of India, they also criticized both General Dyer personally and also the Government of Punjab for failing to compile a detailed casualty count, and quoted a figure offered by the Seva Samiti, which was a social service society, of 379 identified dead and approximately 1200 wounded, out of which 192 were seriously injured. Basically, after this particular count was made public, the casualty number estimated by Indian National Congress was more than 1500 injured with approximately 1000 dead. Now, before we move forward, here's a small announcement for all of you. Unacademy has launched the UPSC CSE mega subscription offer. अनअकैडमी ने यूपीएससी सीएससी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर लॉन्च किया है, एंड हियर यू आर गोइंग टू गेट एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन. नाउ इफ यू टेक 1 year प्लान ऑन अनअकैडमी प्लस, अगर आप 1 year का सब्सक्रिप्शन लेते हो, देन यू विल गेट गारंटीड सब्सक्रिप्शन टिल जुलाई 31st 2022 और prelims 2022, whichever is later. That means if prelims is conducted in the month of June, then your subscription will be valid till 31st July. But if prelims gets postponed like last year, in that case your subscription will be valid till the date of your prelims.
and this offer is valid till April 28. After April 28, this offer will be taken back. So if you want to, take part in this offer, if you want to enjoy the perks of this offer, take your subscription before April 28, 2021. We have new batches starting from April 21st on Unacademy Plus. So make sure that you subscribe to Unacademy Plus, and you can take 1 year or 2 year plan, because both these plans are covered under this offer. Okay. You can use code ARPITA10 to get 10% discount on your Plus subscription as well. The links are given below in the description box. You can enroll now. Okay, so let's start with the class then. Class shuru karta hai. I've given you a brief background. Now, when we talk about this Jallianwala Bagh massacre, we know that 13th April 2021 marked the 102 years of the incident. 102 साल हो गए हैं इस इंसिडेंट को हुए. 102 साल, काफी लंबा समय निकल गया है. 13 अप्रैल 1919 में ये मैसेकर हुआ था. जलियांवाला बाग मैसेकर को हमने पढ़ा मैसेकर ऑफ अमृतसर भी कहा जाता है, और जलियांवाला बाग जो है एक नेशनल मॉन्यूमेंट है अमृतसर में, पंजाब में, जहां पर 13 अप्रैल 1919 में ब्रिटिश ट्रूप्स ने, लार्ज क्राउड था लोगों का जो कि बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आए थे लोग. उनको पता भी नहीं था कि जनरल डायर ने ये ऑर्डर्स दिए हैं. काफी लोगों को नहीं पता था कि जनरल डायर ने ये ऑर्डर्स दिए हैं कि किसी तरीके का आप संगठन या मीटिंग या ऐसे मेल मिलाप नहीं कर सकते. तो वहां पर काफी लोग, मेजोरिटी लोग एक अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के उद्देश्य से आए थे. कुछ लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, सत्यपाल और किचलू जी के अरेस्ट की वजह से. उनके ऊपर बिना उन्हें वार्निंग दिए, बिना उन्हें कुछ कहे बताए, सारे गेट सील करके इन्होंने, जनरल डायर ने ओपन फायर कर दिया. ना यहाँ पर ना आपको ये याद रखना है कि उस वक्त वाइसरॉय कौन थे जब ये इंसिडेंट हुआ, और आउटकम क्या था इस इंसिडेंट का, और राउलेट एक्ट क्या है. देखो, सबसे पहले समझते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर से पहले क्या भूमिका बनी थी, ऐसे क्या इवेंट्स हुए थे जिसके वजह से ये मैसेकर की भूमिका बनी. वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, जो कि 1914 से 18 के बीच में हुआ, लड़ा गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, कुछ ऐसे इमरजेंसी पावर्स इनैक्ट किए थे जो कि लोगों की फ्रीडम को बहुत ज्यादा दबा रहे थे, बहुत ज्यादा खत्म कर रहे थे. जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है, इंडियन पॉपुलेशन जो थी, इंडियंस जो थे, उनकी थोड़े एक्सपेक्टेशन बढ़ गए कि हो सकता है वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एक्ट्स और पॉलिसीज निकाली हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, ठीक है, जितना हमें दबा रहे हैं उतना दबाव थोड़ा कम पड़ेगा, ठीक है, और इंडिया को थोड़ी पॉलिटिकल आजादी ज्यादा दी जाएगी. बट हुआ क्या, ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1918 में मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया, और इस रिपोर्ट के अंदर ये तो कहा गया था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगी, बट उन्होंने कहा कि लिमिटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगी, यानी कि लिमिट्स डाले जाएंगे, रिस्ट्रिक्शंस डाले जाएंगे सेल्फ गवर्नमेंट में भी. फर्दर हुआ क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस वक्त जो थी, उन्होंने राउलेट एक्ट्स के सीरीज थे जो पास करने शुरू किया, अलग अलग सीरीज थे. तो 1919 में राउलेट एक्ट पास किया गया जब, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा रिप्रेसिव मेजर्स थे, यानी कि सबसे ज्यादा दबाव डालने वाले मेजर्स थे, जिस वजह से लोगों के बीच में गुस्सा फैलता चला गया. अब ये जो रिप्रेशन था किस तरीके का था, मैं बता देती हूँ. राउलेट एक्ट में क्या था, अब ये राउलेट एक्ट की सबसे ज्यादा भूमिका है जलियांवाला बाग मैसेकर में. इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था ताकि जो जनता है उसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ग्रिप है वो बढ़ाई जा सके. मार्च के महीने में 1919 में इसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया गया था, जिसके अंदर पावर दे दी गई थी, ताकत दे दी गई थी. किस तरीके की पावर दी गई थी कि अब गवर्नमेंट किसी को भी अरेस्ट कर सकती है बिना किसी जांच पड़ताल या बिना किसी ट्रायल के, ठीक है. अब इस एक्ट को अबॉलिश करने की मांग शुरू हो गई, गांधी जी ने हड़ताल शुरू कर दी, ठीक है. इंडिया का ऑब्जेक्शन दिखाया गया कि हमको इस तरीके का एक्ट पसंद नहीं है, और हमने स्टार्ट किया राउलेट सत्याग्रह. पूरी कंट्री में राउलेट सत्याग्रह का ऐलान कर दिया गया. अमृतसर में क्या हुआ, कुछ प्रोमिनेंट, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लीडर्स हुआ करते थे, नेशनल लीडर्स, जिनमें से एक थे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू. दोनों को अरेस्ट किया गया. उन्हें कुछ ऐसी जगह ले जाकर रख दिया गया जहां जिसका लोगों को ज्यादा अंदाजा नहीं था. इस वजह से जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में है, वहां लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि हमारे लीडर्स के साथ क्या हुआ, कहां उन्हें ले जाया गया, ठीक है. और वहीं ब्रिगेडियर जनरल एडवर्ड हैरी डायर ने एक टास्क फोर्स को लेकर गए, और वहां पर ऑर्डर रिस्टोर करने के नाम पर सबसे पहले तो उन्होंने ये ऐलान किया कि पब्लिक गैदरिंग्स को बैन किया जाएगा, आप कहीं भी इकट्ठा नहीं हो सकते.
काफी लोग थे जो जलियांवाला बाग मैसेकर के दिन, काफी लोग थे, कुछ कह सकते हो आप 10,000 मेन विमेन चिल्ड्रन का क्राउड था जो जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। मेजोरिटी उनमें से बूढ़े बच्चे जो थे, महिलाएं जो थी, वो इसलिए आई थी ताकि वो बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सके। बट जनरल डायर के जो एक्सट्रीम मेजर्स थे कि आप कहीं नेशनल पब्लिक गैदरिंग नहीं कर सकते, बहुत लोगों को इस बारे में मालूम नहीं था। बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वहां आए थे। डायर अपने सोल्जर्स के साथ वहां पहुंचे, एक ही एग्जिट गेट हुआ करता था, उसको सील किया, कोई वार्निंग नहीं दी और ट्रूप्स ने यानी कि आर्मी ने उनकी फायर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो गई ऑन द स्पॉट। कितने बच्चे, बूढ़े, महिलाएं वहीं मारे गए। इंसिडेंट के बाद क्या होता है, बंगाली पोएट और नोबेल लॉरेट थे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपना नाइटहुड का जो टाइटल ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्हें मिला था वो वापस दे दिया। 1915 में उन्हें मिला था, उन्होंने अपना जो टाइटल था, पोजीशन थी, वो वापस सौंप दी। गांधी जी ने भी लार्ज स्केल और सत्याग्रह कैंपेन ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद आप देखते हो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी आता है इसी के विद्रोह में। तो जब इतना दबाव ब्रिटिश गवर्नमेंट पे पड़ता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, एक हंटर कमीशन तैयार करती है 1920 में, जिसमें देखिए डायर को ज्यादा कुछ सजा नहीं दी गई। कहा गया कि हाँ, हमको अफसोस है और हम खेद है हमें कि डायर ने इस तरीके का एक्शन किया और हम इस बात को की निंदा करते हैं। इतनी बात करके उसको रिजाइन करने के लिए ऑर्डर दे दिया गया। आप देख सकते हैं जो उसने हरकत की थी डायर ने, जनरल डायर ने, सिर्फ रेजिग्नेशन लेना काफी नहीं था, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी चाहिए थी। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने सगे वालों से तो सगे ही रहेंगे ना, जो अपने हैं उनके साथ तो सगापन करेंगे। तो जनरल डायर को सिर्फ ये कहा गया कि आप रिजाइन कर दीजिए मिलिट्री से, आपके एक्शंस की हम निंदा करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो आउटकम क्या था कि अमृतसर का जो ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, इसको बुचर ऑफ अमृतसर कहा गया, जनरल डायर को बुचर ऑफ अमृतसर कहा गया, ठीक है। और उनको अब ब्रिटेन भेज दिया गया भारत से वापस, उनके कमांड से उनको हटा दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी ने अपने अपने टाइटल्स वापस दे दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का टाइटल वापस दिया, महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद का टाइटल, मेडल जो था वो वापस दे दिया। 1922 में जो राउलेट एक्ट था जिसकी वजह से ये पूरा कांड हुआ था, उसको रिपील कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये था आपका जलियांवाला बाग मैसेकर। 13 अप्रैल को 102 भी इसकी आप बोल सकते हो 102 साल हो गए इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को, ठीक है। इसलिए हमने खेद एक कह सकते हो एक अफसोस जताया था कि इस तरीके का इंसिडेंट हमारे कंट्री में हुआ और उस वक्त ब्रिटिशर्स ने किस तरीके का दबाव और किस तरीके का प्रेशर बना के रखा था इंडियंस के ऊपर। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा हो। इफ यू एंजॉयड दिस लेक्चर, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।